Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture 22 of our course. In this lecture, we will talk about discrete time Fourier series, and we will also talk about Fourier series and about the LTI systems. In previous lectures, we discussed up till so far we have discussed continuous time Fourier series and a few of the properties of Fourier series in the previous lecture. In this lecture, we will initially talk about discrete time Fourier series, which is very similar to the continuous time Fourier series with only a few differences between them. And then we will talk about Fourier series and about the LTI systems. So let's start today's lecture. Okay, so as I said that Fourier series for discrete time periodic signal is very much similar to the continuous time periodic signal, but we only have slight differences. Uh, the first difference is, unlike the continuous time Fourier series, the discrete time Fourier series is contains only a finite number of terms. The continuous time Fourier series consists of an infinite, that is basically an infinite series which contains an infinite number of terms. So there was issue of convergence for continuous time Fourier series, and we have also discussed in one of the previous lectures the conditions about the convergence of Fourier series, which are famously known as Dirichlet conditions. लेकिन डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज़ जो है उसमें हमारे पास इन्फिनिट टर्म्स नहीं होती, वी ओनली हैव अ फ्यू टर्म्स, अ फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. सो फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को जब आप सम करेंगे तो देयर इज़ नो इशू ऑफ कन्वर्जेंस. सो कन्वर्जेंस का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज विल ऑलवेज कन्वर्ज, सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ कन्वर्जेंस. सो दैट इज़ the first difference between continuous time Fourier series and discrete time Fourier series. Another difference which we have already discussed earlier between the continuous signals and discrete signals is that excuse me. So डिस्क्रीट सिग्नल्स और कंटिन्यूस सिग्नल्स के दरमियान एक और डिफरेंस जो होता है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और वो बेसिकली इनकी पीरियडिसिटी का डिफरेंस है. कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के केस में हमने ये कहा था कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल अगर पीरियडिक हों विद सम फंडामेंटल पीरियड कैपिटल टी, तो आप उनकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट वो 2 पाई ओवर टी जो है वो उस तरह से फाइंड कर सकते हैं. डिस्क्रीट सिग्नल को भी इसी तरह से डिफाइन किया जाता है, इसकी पीरियडिसिटी को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है दैट एक्स ऑफ एन शुड बी इक्वल्स टू सम एक्स ऑफ एन प्लस कैपिटल एन, वेयर omega naught is equals to 2 pi over n, or n is equals to 2 pi over omega naught. But additionally we have also done a few examples के discrete के केस में sometimes जो ये ratio आती है, that ratio is not a rational number. So if it is not a rational number, if we are unable to find a capital N, तो फिर आपके पास discrete time signal जो है वो periodic नहीं होगा. सो यही बात यहाँ पे भी, इसी ये जो डिफरेंस है इनके दरमियान यहाँ पे फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में दिस आल्सो कम्स फ्रॉम दिस फैक्ट. So if we take for example a set of harmonically related complex exponentials like we took them in the continuous time case, so a set of harmonically related complex exponential in discrete time case look like this: phi k of n is e raised to power j k omega naught n, or omega naught is 2 pi over n, so e raised to power j k 2 pi over n into n, for where k is equals to 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, and so on and so forth. However, a difference over here is there are only capital N distinct signals in this set, unlike the continuous case. continuous case में जो हमने phi k of t को define किया था e raised to power j k omega naught t, तो उसमें आपके पास जो है वो
जैसे जैसे आप टी की वैल्यूज़ को चेंज करते रहेंगे तो आपके पास डिफरेंट सिग्नल्स यू विल बी गेटिंग डिफरेंट सिग्नल्स। लेकिन यहाँ पे ये जो आपके पास सेट ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हैं, there are only capital N distinct signals in the above set, as many signal as there are the time period of this discrete time signals. So all those discrete time signals which differ in their frequency by a multiple of 2 pi are identical. जो भी ऐसे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 पाई से डिफर करेगी, दे विल बी सेम. फॉर एग्जांपल phi of 0 will be same as phi of capital N. Similarly, phi 0 of n will be same as phi n of n. Similarly, phi 1 of n will be same as phi n plus 1 of n. And generally, any phi k of n will be same as phi k plus r n into phi k plus r n. So यहाँ पे जो एक और डिफरेंस है और जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो इन्फिनिट डिफरेंट सिग्नल्स नहीं हैं। कार्नियोस के केस में हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स जो हैं वो आपके पास होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारे पास n कैपिटल N डिफरेंट सिग्नल्स हैं। उसके बाद वो सिग्नल जो हैं दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो मसलन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप n को कोई भी एक इंटीजर ले लें, लेट्स सपोज आप ये कहते हैं कि आपके पास जो कैपिटल N है वो 10 है, तो अब आपके पास जब कैपिटल N 10 होगा, ठीक है, तो इस रिलेशनशिप से आप ये, क्योंकि k की वैल्यूज़ यहाँ पे वेरी कर सकते हैं, आप phi 0 ऑफ n मालूम कर सकते हैं, phi 1 ऑफ n, phi 2 ऑफ n, phi 3 ऑफ n, सो ऑन सो फोर्थ। बट phi 10 ऑफ n जब आप phi 10 ऑफ n पे जाएंगे जो कि इसका पीरियड है, ठीक है, जो n जो है कैपिटल T जो है, जो कैपिटल N है जो इसका पीरियड है, तो phi 0 ऑफ n विल बी सेम एज phi 10 ऑफ n. सिमिलरली phi 1 ऑफ n विल बी सेम एज phi 11 ऑफ n. ठीक है, phi 2 ऑफ n विल बी सेम एज phi 12 ऑफ n. तो वो सिग्नल दोबारा से अपने आप को जो है वो रिपीट करना शुरू कर देते हैं. सो वी ओनली हैव capital N distinct signals in case of discrete time, unlike in continuous time case where we have infinite number of different signals, distinct signals. So चूँकि ये सिर्फ आपके पास कैपिटल N डिफरेंट सिग्नल्स हैं, तो इस वजह से आपके पास यहाँ पे जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज़, तो इसकी कन्वर्जेंस का कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो भी आपके पास टाइम पीरियड है, चाहे वो 10 है, 5 है, 100 है, 50 है, बट दैट इज़ ऑलवेज अ फिनाइट नंबर. सो यू हैव एज मैनी डिस्टिंक्ट सिग्नल्स एज द टाइम पीरियड यू हैव. तो अगर इवन n जो है वो 500 है या 1000 है, तो आपके पास सिर्फ 1000 डिस्टिंक्ट सिग्नल्स हैं. तो उन 1000 डिस्टिंक्ट सिग्नल्स की फॉर्म में जब आप रिप्रेजेंट करेंगे या उनको ऐड करेंगे, तो इट विल नेवर हैपन कि वो सीरीज़ आपके पास डाइवर्ज कर जाए. दैट सीरीज़ विल ऑलवेज कन्वर्ज. कार्नियोस के केस में क्या था कि हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स हैं और उनको हम फिर सम करते हैं फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन में, जब हम उसको उस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि चूँकि हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स हैं, तो उनको जब हम सम करते हैं तो वो सीरीज़ बाज़ केसेस में कन्वर्ज करती है और बाज़ केसेस में वो सीरीज़ डाइवर्ज कर सकती है, बिकॉज वी हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिग्नल्स. और फिर उसी के हवाले से हमने वो डायरेक्ट कंडीशंस जो है वो डिस्कस की थी कि अगर आपका सिग्नल जिसको आप फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, तो ओनली देन इट्स फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन इज़ पॉसिबल. वो डायरेक्ट कंडीशन 1, 2, 3 वो अपने पहले एक लेक्चर में डिस्कस की थी. लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट के केस में इन्फिनिट सिग्नल्स नहीं है, वी ओनली हैव अ फिनाइट नंबर ऑफ सिग्नल्स. सो दैट्स व्हाई here there is no issue of convergence. So these are the major differences between continuous time Fourier series and discrete time Fourier series. Okay, so how we represent
our signal x of n, which is say a discrete time periodic signal, equivalent representation, Fourier series representation is given by this. X of n is represented by a k phi k of n, where phi k of n is harmonically related complex exponential for different values of k. So a k e raised to power j k omega naught n, ये बिल्कुल exactly वैसा ही है जैसा आपके पास कार्नियस का केस था. कार्नियस के केस में you are having a k e raised to power j k omega naught t, and now you are having a k e raised to power j k omega naught n. Since omega naught is 2 pi over n, so you can also write it like this, 2 pi over capital N into n. ठीक है. और a केस जो हैं ये इसके आपके पास जो है वो कोफिशिएंट हैं, जो फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स हैं फॉर डिफरेंट कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स. तो वो आपके पास ए के कोफिशिएंट्स हैं, और ये कोफिशिएंट भी उसी तरह से आपको मालूम करने पड़ेंगे जिस तरह से आप कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज के केस में कोफिशिएंट्स को मालूम किया करते थे. यहाँ पे भी आप उसी तरह से कोफिशिएंट्स जो हैं वो आपने मालूम करने हैं. तो ये तो जनरल एक्सप्रेशन है विच लुक्स वेरी सिमिलर टू द कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज केस. कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज और इसमें जो हमने लिखा हुआ है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि कंटिन्यूअस के केस में आप t वेरिएबल यूज करते हैं और यहाँ पे आप n यूज कर रहे हैं. हाउएवर व्हाट वी हैव रिटन ओवर हियर, दिस इज समवट डिफरेंट देन कंटिन्यूअस टाइम केस, और इसके अंदर अब हम वही डिफरेंस इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जो हमने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया है. सो पिछली स्लाइड पे हमने ये बात की है कि वी ओनली हैव कैपिटल N डिस्टिंक्ट सिग्नल. उसके बाद वो सिग्नल्स जितने भी होते हैं वो सारे अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देते हैं. मसलन जैसे N10 के केस में phi 0 इज सेम एज phi 10, phi 1 इज सेम एज phi 11, phi 2 is same as phi 12 and so on so forth. So इस वजह से ये k की वैल्यू जो है, ये जो डिस्टिंक्ट सिग्नल आपके पास चूँकि सिर्फ कैपिटल N है, so instead of this summation going for any value of k, we restrict this summation to be only for k up till equals to n, कैपिटल N. मसलन अगर आपके पास जो है वो जो हमने एग्जांपल ली n इज इक्वल्स टू 10 है, तो आप ज़ाहिर है 10 के बाद तो चूँकि सारी रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है सिग्नल की, कोई सिग्नल भी डिस्टिंक्ट सिग्नल नहीं होता बल्कि वो सिग्नल पहले भी कहीं अकर कर चुका होता है. तो इस समेशन में हम सिर्फ उतनी ही वैल्यूज़ लेंगे जितना उस सिग्नल का टाइम पीरियड होगा, कैपिटल N. सो k की वैल्यू इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्राम 0 टू से अप टिल इन्फिनिटी, वी रिस्ट्रिक्ट इट फ्राम 0 टू सम कैपिटल N, क्योंकि इसके बाद सारे सिग्नल्स की रेपिटेशन है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोरियर continuous time Fourier series and discrete time Fourier series. So that is also written over here, as there are only n distinct values, so summation only need capital N terms. There is no point to include more terms, and that will not improve your approximation because distinct signals जो आपके पास हैं वो सिर्फ कैपिटल N है. सो कैपिटल N के बाद अगर आप और ज़्यादा टर्म्स जो हैं उनको ऐड करते भी रहें या करते भी जाएं तो उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा, वो किसी तरह से भी इस रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव नहीं करेगा. सो यू ओनली नीड कैपिटल N terms. So instead of this summation variable going from k is equals to 0 to infinity, you can restrict this summation variable from 0 to some capital N, 0 1 2 3 up till capital N. और ये जो summation variable है ये आपने कोई भी जो है वो n का इंटरवल जो है वो जो कोई भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट इट शुड इंक्लूड मिनिमम कैपिटल N टर्म्स. मसलन 0 से लेके कैपिटल N तक, मसलन अगर आपके पास n10 है तो 0 से लेके 10 तक टोटल 11 टर्म्स यू कैन इंक्लूड, या फिर आप 3 से स्टार्ट कर सकते हैं और n+2 तक, सो 3 से लेके 12 तक अगेन यू हैव 11 टर्म्स. सो कोई भी कैपिटल N नंबर ऑफ टर्म्स आप ले सकते हैं और इस k को उस नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू इंक्लूड 11 टर्म्स. For if you assume that n is equals to 10, the representation will remain the same. So कोई भी capital N terms आप select कर सकते हैं और उससे अपने signal को represent कर सकते हैं, because in discrete time signal has only capital N distinct signal. इसके बाद जो signal होंगे capital N के बाद वो पहले भी कहीं ना कहीं अकर कर चुके होंगे, so this will be repetition only. अच्छा, अब इस फैक्ट को अगर हम यूज़ करें
तो यहाँ पे फोरियर सीरीज़ के जो कोफिशेंट्स डिटर्मिनेशन का प्रॉब्लम है दैट आल्सो बिकम्स वेरी सिंपल। ऑल दो कोफिशेंट्स जो हैं वो उस तरीके से भी मालूम किए जा सकते हैं जिस तरीके से आपने कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ के कोफिशेंट मालूम किए थे लेकिन यहाँ पे जो है डिस्क्रीट टाइम के केस में एक और मेथड से भी कोफिशेंट्स जो हैं वो मालूम किए जा सकते हैं। मसलन इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं n को 0 पुट करूं तो माई x ऑफ 0 विल बी इक्वल्स टू ए के समेशन ओवर के ए के। सिमिलरली अगर मैं n को 1 पुट कर दूं तो ए के ई रेज टू पावर जे के 2 बाय ओवर के ओवर n। इसी तरह से x को n-1 पुट कर दूं बिकॉज आई ओनली नीड n टर्म्स तो आई विल गेट दिस। सो यहाँ से भी I know the value of signal at n is equals to 0. I know the value of signal at n is equals to 1. I know the value of signal at n is equals to n-1. So there are as many equations as there are unknowns. ठीक है, सो उतनी ही मेरे पास इक्वेशंस हैं जितने मेरे पास अननोन्स हैं। तो यहाँ से भी मैं फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स जो हैं ये मालूम कर सकता हूँ। ये चीज़ जो है या ये फैसिलिटी जो है आपके पास कंटिन्यूस टाइम केस में नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस टाइम केस में जैसे जैसे आप t को इंक्रीज़ करते रहेंगे तो यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज़ और वो डिफरेंट सिग्नल्स होंगे। वहाँ पे कोई रेपिटेशन नहीं है, वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि इसके बाद जितने सिग्नल आ रहे हैं वो पहले भी कहीं आ चुके हैं। लेकिन डिस्क्रीट टाइम का केस जो है वो ऐसा है कि देयर आर ओनली n डिफरेंट वैल्यूज़। सो इस वजह से आप यहाँ से ये n ही कोफिशिएंट्स हैं, ये उतनी एज मैनी नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स एज देयर इज़ द पीरियड ऑफ दिस सिग्नल। सो यहाँ से 1-to-1 रिलेशनशिप है बिटवीन दीज कोफिशिएंट्स एंड दीज इक्वेशंस। सो यहाँ से भी आप इसके कोफिशिएंट्स जो हैं ये मालूम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह की इक्वेशन से आप ये जो x0, x1, xn-1 जो है ये सारे कोफिशिएंट्स इन इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। However, if you want to determine the Fourier series coefficients like the way you determine for the continuous time case, तो वो उस तरह से भी मालूम कर सकते हैं। continuous time case में आपको पता था कि हमारे पास दो इक्वेशन थी, यहाँ पे भी उसी तरह से दो इक्वेशन है। ये इक्वेशन जिस सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स विद ए केस विद कोफिशिएंट ए केस। और ए के मालूम करने के लिए आपके पास यहाँ पे जो फार्मूला है कंटिन्यूस टाइम के केस में here you were having an integral, but this is the case for discrete time, so instead of integral we use a summation। बाकी वही है, वहाँ पे हम लिखते थे x of t e raised to power minus j k omega naught t, यहाँ पे we have written x of n e raised to power minus j k omega naught n। so अपना आपका जो given signal है x of n, for example आपने a1 मालूम करना है तो a1 मालूम करने का मतलब ये है कि आप k को 1 पुट करेंगे और अपने गिवन सिग्नल को e रेज टू पावर माइनस j ओमेगा नॉट n से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यू विल सम अप ऑल द वैल्यूज from 0 to some capital N, so that would be your A1। Similarly A2 मालूम करना है तो K को 2 पुट करेंगे और e raised to power minus j2 ओमेगा नॉट n से अपने सिग्नल xn को मल्टीप्लाई करेंगे and again you will sum all those values, so that would be your A of 2 and so on so forth। so ये वो तरीका है जिस तरह से आपने कंटिन्यूस टाइम के केस के कोफिशिएंट मालूम किए थे। एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस पे आप डिस्क्रीट टाइम के कोफिशिएंट्स भी इस तरह से मालूम कर सकते हैं। दूसरा तरीका वो जो सिर्फ डिस्क्रीट टाइम में अवेलेबल है वो ये वाला है जिसमें आपको पता है सिग्नल की वैल्यू x ऑफ 0, सिग्नल की वैल्यू एट n इज इक्वल्स टू 0 क्या है, सिग्नल की वैल्यू एट n इज इक्वल्स टू 1 क्या है, सिग्नल की वैल्यू एट n इज इक्वल्स टू कैपिटल N माइनस 1 क्या है। सो you get from here you get as many equations as there are coefficients, so इस तरह से भी आप coefficients मालूम कर सकते हैं। Okay, so this was our first part of the lecture which was about the discrete time Fourier series। discrete time Fourier series को हम इस वजह से ज़्यादा डिस्कस मज़ीद नहीं करेंगे कि इट इज़ वेरी सिमिलर टू कंटिन्यूस टाइम केस। सिर्फ जो इसके डिफरेंसेस थे वो डिफरेंसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ भी वैसे ही हैं जैसे कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं। कन्वर्जेंस का कोई इशू इसमें है नहीं क्योंकि ये हम बात कर चुके हैं कि डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज़ जो है वो आपके पास हमेशा कन्वर्ज करेगी। सो देयर इज़ नो इशू ऑफ कन्वर्जेंस। सो यहाँ पे कोई डायरेक्ट लेट कंडीशंस या इस तरह की चीज़ डिस्कस करने की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है. रेस्ट एवरीथिंग इज़ सिमिलर. What was different that we have already discussed. जो डिफरेंस था उसकी हमने बात कर ली कि क्या डिफरेंस था प्रीवियस कुछ स्लाइड्स में. बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी जो हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं जैसे आपके पास कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ की थी. एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ सिमिलर. सो इसको फर्दर जो है डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. हाउएवर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आपकी जो बुक है ओपनहाइम की उसमें डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी कुछ टॉपिक्स मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं. बट दे आर एग्जैक्टली सिमिलर लाइक द कंटिन्यूस टाइम केस. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट के what are LTI systems. You already I think know what are LTI systems, but what is the relationship between फोरियर सीरीज़. अगर हम फोरियर सीरीज़ से किसी सिग्नल को इनपुट सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिर उसको एक LTI सिस्टम से उस सिग्नल को पास कर रहे हैं तो वो LTI सिस्टम उस गिवन सिग्नल के लिए कोई ना कोई आउटपुट जनरेट करता है. सो अगर आपके पास XT इनपुट है तो इस XT इनपुट के लिए जो आपका LTI सिस्टम है कोई YT आउटपुट जनरेट करता है which obviously are related YT और XT. और वो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि YT जो है वो कन्वोल्यूशन होती है इनपुट का और इम्पल्स रिस्पांस का. जो सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस है इनकी कन्वोल्यूशन है. सो वो आप वहाँ से मालूम कर सकते हैं. लेकिन अब यहाँ पे हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हमने अपने सिग्नल XT को अब फोरियर सीरीज़ से रिप्रेजेंट किया है. नो मैटर वेदर दैट सिग्नल इज कंटिन्यूस और डिस्क्रीट, दोनों केसेस में हम सिग्नल को फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज़ एन इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, वही आपका जो सिग्नल था x ऑफ t, ओरिजिनल सिग्नल जो आपका पीरियाडिक सिग्नल था x ऑफ t या x ऑफ n, उसको अब हमने रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज या डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज. और ये उसी सिग्नल की एक और अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमने कम्प्लेक्स हार्मोनिकली रिलेटेड कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल यूज़ किए हैं और विद डिफरेंट कोफिशेंट्स, और वो कोफिशेंट्स भी हमने मालूम कर लिए हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अगर ये सिग्नल वही x ऑफ t सिग्नल जो आप अपने सिस्टम को इनपुट के तौर पे दे रहे हैं, अगर हम उसको फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज़ अनदर इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन, और इसको सिस्टम से पास करते हैं तो उस अब इसकी जो आउटपुट है और इनपुट है वो आपस में कैसे रिलेटेड हैं. अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मज़ीद एलेबोरेट करूं तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपने अपने सिग्नल XT को रिप्रेजेंट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज़. और ये हमने पहले किसी लेक्चर में ये बात की थी कि फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन में द ओनली थिंग विच यू नीड टू डिटरमिन इज़ द कोफिशेंट्स. सो इसका मतलब है आपका जो पीरियाडिक सिग्नल है XT, उसको जब आपने विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंट किया हुआ है तो इट हैज़ सर्टन कोफिशेंट्स विच आर कॉल्ड AKs. सो वो जो AKs हैं जो आपके पास फोरियर सीरीज़ कोफिशेंट्स हैं, जब ये इस LTI सिस्टम से पास होंगे तो उन पे क्या इफेक्ट होगा. वो AKs जो हैं आपके फोरियर सीरीज़ कोफिशेंट, क्या वो किसी और तरह के कोफिशेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे या सेम रहेंगे. सो ये चीज़ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इस टॉपिक में कि आपका जो LTI सिस्टम है जिसको आप इनपुट दे रहे हैं XT, एक तरीका तो वही है कि आपके पास जो XT है वो आप YT उसे जनरेट करते हैं और कन्वोल्यूशन से YT फाइंड कर लेते हैं. बट सिंस वी हैव एन अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन नाउ जहाँ पे हमने XT को कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल और फोरियर सीरीज़ कोफिशेंट्स की मदद से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो अगर हम ये सिग्नल अपने LTI सिस्टम को इनपुट दें तो इसका क्या असर होगा या आपकी आउटपुट के कोफिशेंट्स इनपुट के साथ कैसे रिलेट करेंगे. ओके, सो this thing we have already discussed that if you give an input which is say an exponential function, if you give xt as e raised to power st, if you give an input which is a complex exponential to some LTI system, then the output will be h of s e raised to power st. ये हमने सबसे पहले जब फोरियर सीरीज स्टार्ट की थी, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें ये चीज़ डिस्कस की थी कि आपके पास LTI सिस्टम्स जो हैं वो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के केस में when you give complex exponential at the input, they produce the same complex exponential at the output multiplied with something which we call system function h of s, and that h of s is defined like this. This is
impulse response multiplied by that e raised to power minus s tau d tau and integrated from minus infinity to plus infinity. So this was for the continuous time case. For discrete time case, we have also discussed that if you give xn as z raised to power n as an input to your LTI system, then the output is h of z into z of n, where h of z is defined like this. It is a summation from minus infinity to plus infinity h of k z raised to power minus k. So generally these numbers s and z are complex, and when they are complex, these numbers are complex generally, so h of s and h of z are generally called system function. So जो जनरल टर्म है उसमें s जो है that is a complex number which is equals to alpha plus j omega. So it has a non-zero real part and it has a non-zero imaginary part. Generally s जो है वो आपके पास ऐसे होगा, and same is true for the discrete variable z. However, if we take real part of that s is equals to 0, remember that s was equals to alpha plus j omega generally, लेकिन अगर हम ये assume करें कि alpha is equals to 0 है तो इसका मतलब है कि s will simply be equals to j omega. And if s is equals to j omega, so this h of s will become h of j omega, because now s is equals to j omega, and on this side we were having e raised to power minus st, so वो s भी जो है j omega से replace हो जाएगा, so we get ht e raised to power minus j omega t dt. So this thing h of j omega is something which is called the frequency response of the system. ठीक है, सो इसका एक ख़ास नाम है कि अगर आप s ये अज्यूम करें, वैसे तो जनरली s जो था वो एक कम्प्लेक्स वेरिएबल था जिसमें रियल पार्ट भी नॉन ज़ीरो हो सकता है और इमेजिनरी पार्ट भी नॉन ज़ीरो हो सकता है या होता है जनरली, लेकिन अगर आप ये अज्यूम करें कि अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो सो s इज़ सिंपली इक्वल्स टू j ओमेगा, तो उस केस में जो आपका सिस्टम का रिस्पांस आता है उसको हम सिस्टम रिस्पांस नहीं कहते, बल्कि उसके लिए एक और नाम यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस. इसी तरह से z इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर j ओमेगा अगर हम ले लें तो आपके पास जो इस सिस्टम का रिस्पांस आता है डिस्क्रीट सिस्टम का, वो उसको h ऑफ ई जे ओमेगा कहा जाता है, और दैट इज इक्वल्स टू h ऑफ एन ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा एन. सो दैट इज आल्सो कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम. नाउ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इज एन इम्पॉर्टेंट parameter for any system, for any LTI system, because frequency response tells us that what would be the response of our system at various frequencies. In simple words, हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के लिए आपके सिस्टम का रिस्पांस जो है वो कैसा होगा. प्लीज़ रिमेंबर दैट कि सिस्टम रिस्पांस इज़ डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल. अगर आप इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एक रखते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी के लिए उस सिस्टम का रिस्पांस कुछ और होगा, और अगर वो फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं तो फिर उस सिस्टम का रिस्पांस कुछ और होगा. सो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आपको एग्जैक्टली यही चीज़ बताता है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए आपके पास उस सिस्टम का रिस्पांस जो है वो कैसा होगा, या हाउ योर सिस्टम इज़ डिपेंडेंट अपॉन वेरियस फ्रीक्वेंसीज. और इस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कहलाता है मैग्नीट्यूड रिस्पांस और एक कहलाता है फेज रिस्पांस. ठीक है, वो मे बी हम भी नेक्स्ट जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का चैप्टर है उसमें ज़रा ज़्यादा डिटेल से इसको देखेंगे जब हम फिल्टरिंग ऑपरेशन की बात करेंगे. बट मैग्नीट्यूड रिस्पांस का मतलब ये है कि जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उन पे आपका जो सिस्टम है वो उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस क्या है, यानी वो उनके मैग्नीट्यूड को किस तरह से चेंज कर रहा है. और फेज़ रिस्पांस का मतलब ये है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के लिए जब वो सिस्टम से पास होती हैं तो फेज़ जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट होता है. सो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी की बेस पे, इसी को एनालाइज करके हम अपने सिस्टम्स को डिज़ाइन करते हैं. खुसूसन जब हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फ़िल्टर्स की बात करते हैं तो उनकी डिज़ाइनिंग के लिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि कौन सा मैग्नीट्यूड, किस तरह का मैग्नीट्यूड रिस्पांस या किस तरह का फेज़ रिस्पांस हमें रिक्वायर्ड है, या किस तरह का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस उस फिल्टर का या उस सिस्टम का हमें चाहिए.
तो वो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर उस सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो अब हमारे पास जो सिग्नल था एक्स ऑफ टी, वो पीरियाडिक सिग्नल था जिसको हमने फोरियर सीरीज की मदद से जब रिप्रेजेंट किया था तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन थी, एक्स ऑफ टी वाज ए के ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी। इसको हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमने अपने पीरियाडिक सिग्नल एक्स टी को इस तरह से फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट किया। Okay, now the question is कि अगर ये signal xt which is basically equals to in a equivalent Fourier series representation is a k e raised to power j k omega naught t, if this is given as an input to an LTI system with impulse response h of t, तो आपके पास जो output होगी yt, उसके जो coefficients होंगे वो किस तरह से इफेक्ट होंगे, because xt has coefficient a k's, तो वाई टी के जो कोफिशेंट हैं वो क्या एक्स टी से रिलेटेड होंगे, अगर रिलेटेड होंगे तो इनका क्या रिलेशनशिप होगा, किस तरह से जो है वो वाई टी के और एक्स टी के फोरियर सीरीज कोफिशेंट्स को आप आपस में रिलेट कर सकते हैं। सो द रिलेशनशिप इज दिस कि अगर एक्स टी जो है उसके फोरियर सीरीज कोफिशेंट ए केज हैं तो वाई टी विल हैव फोरियर सीरीज कोफिशेंट ए के एच ऑफ जे के ओमेगा नॉट, विच मीन्स कि आपका जो LTI सिस्टम है उससे जब आपका ये सिग्नल एक्स ऑफ टी पास हुआ तो इसके आउटपुट पे जो आपको कोफिशेंट्स मिलेंगे दे विल बी ए केज जो इसके कोफिशेंट थे मल्टीप्लाइड विद the frequency response of that system at that particular frequency. Please remember कि h of j omega is generalized frequency response, लेकिन अब जब हम एच ऑफ जे की ओमेगा नॉट कह रहे हैं तो दिस इज रिस्पांस एट वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। सो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो सिस्टम का रिस्पांस है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, वो और इनपुट फोरियर सीरीज कोफिशेंट्स ए के आपस में मल्टीप्लाई होके आपको आउटपुट के कोफिशेंट्स जो हैं वो देंगे। एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो आपके पास वाई टी है जो आउटपुट सिग्नल है, दिस इज़ आल्सो पीरियाडिक विद द सेम पीरियड एज एक्स टी। सो इसके जो आउटपुट के फोरियर सीरीज कोफिशेंट्स हैं दे आर दीज ए के एच ऑफ जे के ओमेगा नॉट। वी विल सून टेक एन एग्जांपल और उससे ये आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल। ये एक पीरियाडिक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, लेट्स सपोज ये वाला जो डिफाइन किया हुआ है इसके सिर्फ वी हैव 7 नॉन जीरो कोफिशिएंट्स एक्स ऑफ टी। दिस समेशन गोज फ्रॉम -3 to +3 ए के ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी। सो दिस समेशन इज कंटेन 7 टर्म्स। सो ए नॉट here is 1, a1 and a-1 are 1/4, a2 and a-2 are 1/2, a3 and a-3 are 1/3। सो ये तो हमारे इनपुट सिग्नल है। अब हमें जो है वो ये मालूम करना है कि अगर हमारे पास इम्पल्स रिस्पांस, इस इनपुट सिग्नल को हम एक सिस्टम से पास करते हैं जिसका इम्पल्स रिस्पांस एच ऑफ टी है और वो इस तरह से डिफाइन है ई रेज टू पावर -t u ऑफ टी, तो हमने मालूम करने हैं आउटपुट के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। इनपुट के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट गिवन है, ये वाले हैं ए नॉट, a1, a-1, a2, a-2, a3, a-3, और इम्पल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम भी गिवन है एच ऑफ टी। तो हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है आउटपुट के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि आउटपुट के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होंगे, यही ए केज जो हैं, और इनको मल्टीप्लाई करना है आपने एच ऑफ के जे ओमेगा नॉट से। ठीक है, सो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हमें चाहिए एच ऑफ जे ओमेगा। जब तक एच ऑफ जे ओमेगा नहीं होगा तो हम ज़ाहिर है इन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो हम फाइंड करते हैं एच ऑफ जे ओमेगा। एच ऑफ जे ओमेगा की डेफिनेशन अभी हमने 1-2 स्लाइड्स पहले देखी कि एच ऑफ जे ओमेगा इज योर एच ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टाउ डी टाउ। सो एच ऑफ टी या टाउ इज ई रेज टू पावर माइनस टाउ ई रेज टू पावर माइनस टाउ ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टाउ डी टाउ। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे और जब लिमिट्स पुट करेंगे तो एच ऑफ जे ओमेगा विल बी इक्वल्स टू दिस 1/1 प्लस जे ओमेगा। सो ये हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आ गया। तो इस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस
अब हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी मालूम हो गया और हमें इनपुट के फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स भी मालूम है। तो अब हम आउटपुट के फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट मालूम करते हैं। सो आउटपुट के फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स जो होंगे वो लेट्स से सम बी केज हैं। इनपुट के फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स फॉर ए केज, सो लेट द फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स ऑफ द आउटपुट आर सम बी केज। अब वो बी केज हमने मालूम करने हैं जो प्रीवियस स्लाइड में हमने प्रॉपर्टी देखी है कि वो बी केज जो है वो ए केज से किस तरह से रिलेटेड है। मोर ओवर यहाँ पे हम ओमेगा नॉट जो है जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 2 पाई, दैट वाज आल्सो 2 पाई फॉर द इनपुट सिग्नल जिस एक्स ऑफ टी, और वो आउटपुट पे भी 2 पाई ही रहेगी क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती। सो y ऑफ t इज दिस b के e raised to power j के 2 pi t बिकॉज ओमेगा नॉट इज़ 2 पाई, सो j के ओमेगा नॉट t। और ये हमें पता है कि b केज आर a के h ऑफ j के ओमेगा नॉट, सो h ऑफ j के 2 पाई। सो अगर अब हमारे पास फॉर एग्जांपल a नॉट 1 था तो इस a नॉट 1 के लिए हमने b नॉट मालूम करना है, तो हम यहाँ पे k की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सो b नॉट विल बी a नॉट h ऑफ j0 2 पाई, सो दिस विल बी h ऑफ 0। अब h ऑफ j ओमेगा आपके पास है 1/1 प्लस j ओमेगा, उसमें जो है वो आप वो वैल्यू पुट करें ओमेगा के लिए 0, तो वो आप दैट विल बी इक्वल्स टू 1, सो इट मीन्स a नॉट विल बी सेम एज b नॉट। सिमिलरली a1 एंड a-1 आर 1/4, सो इनके लिए हमने b1 मालूम करना है और b-1 मालूम करना है। तो अगर हम k को यहाँ पे 1 पुट करें तो b1 विल बी a1 h ऑफ j 2 पाई, ठीक है। और ये अगेन हम मालूम कर सकते हैं h ऑफ j 2 पाई उसी रिलेशनशिप से जो प्रीवियस स्लाइड पे h ऑफ j ओमेगा हमारे पास है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। वो था 1/1 प्लस j ओमेगा, सो दैट विल बी 1/1 प्लस j 2 पाई बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू नाउ h ऑफ j 2 पाई। सो 1/4 को 1/1 प्लस j 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी अवर b1। सिमिलरली a-1 के केस में भी ऐसा ही होगा। सो b-1 भी आपके पास यही आएगा विद ओनली दिस डिफरेंस कि यहाँ पे k को जब आप -1 पुट करेंगे दिस विल बी h ऑफ j -2 पाई। सो h ऑफ j -2 पाई में यहाँ पे साइन जो है वो आपके पास माइनस का आ जाएगा। सिमिलरली a2 एंड a-2 के लिए आप k को 2 पुट करेंगे। सो k को 2 पुट करेंगे तो b2 विल बी a2 h ऑफ j 4 पाई, h ऑफ j 4 पाई, ओमेगा की जगह आप j 4 पाई पुट कर दें तो जो आपके पास जो है वो ये b2 आ जाएगा 1/2 इंटू 1/1 प्लस j 4 पाई, और इसी तरह से b-2 में 1/2 इंटू 1/1 माइनस j 4 पाई। सो इस तरह से आप आउटपुट के कोफिशिएंट्स जो हैं वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर LTI सिस्टम्स जिसको इनपुट सिग्नल आप दे रहे हैं एक ऐसा सिग्नल जो कि पीरियाडिक है और जिसको आपने इक्विवेलेंट फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सो उस सिग्नल के लिए आप आउटपुट के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इस रिलेशनशिप से मालूम कर सकते हैं। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज़ को थोड़ा सा डिस्कस किया और फोरियर सीरीज़ और LTI सिस्टम्स का जो रिलेशनशिप है, यानी इफ़ यू नो द कोफिशिएंट्स ऑफ इनपुट हाउ यू विल डिटरमिन द कोफिशिएंट्स ऑफ आउटपुट फॉर एन LTI सिस्टम, ये डिस्कस किए। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।